Assalamu alaikum. Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Now we are starting the chapter The World of Rock. Question arises, what are rocks? So rocks are the combination of minerals. What are minerals? Minerals are solid substances that are present in nature and can be made of one element or more elements combined together. जैसा कि हमें पता है कि हमारी अर्थ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं लाइक पोटेशियम मैग्नीशियम अल्मीनियम सिलिकॉन एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जब ये सारे मिनरल्स कंबाइंड होते हैं एक साथ द मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन नेचर. ये हमारे नेचर में मौजूद हैं एंड कैन बी मेड ऑफ वन एलिमेंट और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर. जब ये सब आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स जनरेट होती हैं. Now the question is, where do all rocks come from? Any guesses? कहाँ से आती हैं ये rocks? Now let's check further. They come from the Earth's crust. The Earth's crust is the thin outer layer of the Earth. It is about 30 kilometer thick on land and only about 8 kilometer thick under the sea. ये जो सारी रॉक्स हैं ये हमें मिलती हैं लेयर्स ऑफ अर्थ से, फ्रॉम द क्रस्ट ऑल्सो फ्रॉम द मेंटल. You know that the second layer of earth is mantle. So the solid parts of the earth's crust are called rocks. जो अर्थ क्रस्ट का सॉलिड पार्ट है वो सब मेड किससे हुआ है, किससे बना हुआ है? दे आर मेड फ्रॉम रॉक्स. मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 or more minerals. Now the outermost solid cover or shell of the earth known as the earth's crust. You can see in the picture the earth's crust is the first layer of earth where we are living. Also it called as lithosphere. Crust is further divided into two layers, the upper crust and the lower crust. You can see in this picture more clearly that these are the layers of earth. You can see the mountains on the first layer of earth which is solid crust. Crust further divided into two, the oceanic crust and the continental crust. You can see in the picture as well the bluish part is the oceanic crust and the hard solid surface is the continental crust. The oceanic crust is about 8 km in thickness and continental crust is about 32 km in thickness. The upper part of the crust consists of silica and aluminium. That's why called as Sial. The upper, you can see in this picture, the upper crust made up with silica and aluminium. That's why it's called Sial. ये कौन से मिनरल है जो हमारा मोस्ट प्रोबेबली जिसे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ, अपर क्रस्ट. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बॉइल्ड एग. जब बॉइल्ड एग होता है जो उसका फर्स्ट सॉलिड पार्ट उसका शेल होता है, इस टाइप की हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है, अपर क्रस्ट. और वो कौन से मिनरल से मिलके बनी हुई, ज़्यादा कॉम्बिनेशन उसमें किसका है, ज़्यादा पार्ट एलिमेंट्स कौन से हैं, सिलिका एंड अल्मोनियम. ये हायर क्वांटिटी में. दैट्स वाई द अपर क्रस्ट कॉल्ड एज सियाल एंड द लोअर क्रस्ट मेड अप विथ सिलिका एंड मैग्नीशियम. सिलिका अपर क्रस्ट में भी है, सिलिका लोअर क्रस्ट में भी है, लेकिन अपर क्रस्ट में सिलिका के साथ कौन सा एलिमेंट है, अल्मोनियम. रिपीट विथ मी, silica and aluminium. This is upper crust which is made up with silica and aluminium called Sial, and the lower crust made up with silica and magnesium, that's why called Sima. You know that there are 3 layers of earth as we discussed before in this picture. You can easily look at this picture. There are 3 proper layers of earth, the crust, mantle and core. Now there is a line between that separates the crust from the mantle or from mantle to the core.
कोई ना कोई एक इसमें के बीच में एक सेपरेशन है जो अलग कर रही है क्रस्ट को मेंटल से और मेंटल को कोर से. सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूटी, a zone that makes a boundary between different layers of earth. जैसे कि हम पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, a line between the crust and mantle called as mohovivic discontinuity, जो अलग कर रही है क्रस्ट को मेंटल से. अच्छा, अभी हमने ये बात सारी डिस्कस कर ली कि क्रस्ट जो है वो कौन से एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, सिलिका, अल्मोनियम एंड मैग्नीशियम. द अपर क्रस्ट इज मेड अप विथ सिलिका एंड अल्मोनियम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सियाल, एंड द लोअर लेयर ऑफ लोअर क्रस्ट विच इज मेड अप विथ सिलिका एंड मैग्नीशियम. अब आप ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये सारे तो मिनरल्स हैं. दैट मीन्स लेयर्स ऑफ अर्थ आर मेड अप विथ डिफरेंट मिनरल्स. Now let's move further, or you can see also in this picture there is a clearly oceanic area, oceanic crust, and the continental area which is continental crust, and the lower part of the picture shows the mantle, and the line between the mantle and the crust is moho discontinuity. Now there are classification of rocks, but before that I want to discuss about layer of earth more. So yes, here is the second layer which is the mantle. Mantle is the second layer of earth, lies below the crust. ये बात हमें पता है कि upper crust के नीचे lower crust है, lower crust के नीचे mantle है. ठीक है, mantle is the second layer of earth, lies below the crust. Mantle also based on hard rock, but inner mantle has molten lava. Now you can see in the picture mantle also the solid one, but mantle has two layers, the upper mantle and the lower mantle. जो upper mantle है वो solid rock है, बिल्कुल crust की तरह, जैसे crust हमारा solid है. और फिर उसके बाद upper mantle के बाद शुरू हो रहा है lower mantle. अच्छा, a line between upper mantle and lower mantle is a asthenosphere. Asthenosphere is a plastic like structure, बहुत flexible है वो. ठीक है, वहाँ से flexibility start हो रही है layers में. फिर उसके नीचे जो है वो lower mantle, और lower mantle क्या है, lower mantle is in liquid form, semi liquid, क्योंकि यहाँ पे जो है magma built up होता है. Magma, a liquid, the inner liquid of the earth. ठीक है, अभी आप इतना समझो, फिर मैं आगे आपको और बताऊंगी इसके बारे में क्या है. Now the third layer of earth is core, which lies below the mantle. ये आप क्लियरली पिक्चर आपको शो कर रही है कि किस तरीके से मेंटल के नीचे न्यू लेयर ऑफ अर्थ शुरू हो रही है, विच इज आउटर कोर एंड इनर कोर. एंड आउटर कोर एंड इनर कोर बेसिकली कॉल्ड एज कोर, द लेयर ऑफ अर्थ कोर. Now the outer core is in liquid form. Mark this line, the outer core is in liquid form. Core further divided into two parts, outer core and inner core. The outer core probably the liquid state which is below the mantle, and the inner core is in solid state. Core made up with iron, nickel and some amount of sulfur. अब आपने ये बात भी नोट करी होगी कि ये जो जितनी भी लेयर्स ऑफ अर्थ हैं दे आर मेड अप विथ मिनरल्स. कोर किस किस चीज़ से बना हुआ है, कौन कौन से मिनरल से मिलके बना हुआ है, रिपीट विथ मी, आयरन, निकल एंड सल्फर. दैट्स वाई द टेम्परेचर ऑफ इनर लेयर ऑफ अर्थ विच इज़ द सॉलिड और लिक्विड कोर is about 5000 degrees centigrade because of iron. Temperatures are really high in core, about 5000 degrees centigrade. That's why minerals start melting. जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उनकी अबव लेयर में जितने भी मिनरल्स हैं जो अबव लेयर ऑफ अर्थ हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी. Temperatures are really high in core, about 5000 degrees centigrade. That's why minerals starts melting and change its form. This is the reason of developing of different rocks. Rocks जो basically हमारी बन रही हैं, जो develop हो रही हैं, उसकी वजह क्या है? They are made from different minerals.
जब वो मेल्ट होते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ में, मिनरल्स मेल्ट होंगे, फिर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो अपना शेप चेंज करेंगे, अपनी फॉर्मेशन चेंज करेंगे, उस वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक बन रही हैं. नाउ देयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स. Oh, I have added one poem regarding rock cycle. So you can take this screenshot of this picture, so you can easily learn about the rock cycle. Now volcanoes blowing their tops. या हम सबको पता है कि volcanoes जो हैं इरप्ट करते हैं, इरप्शन होती हैं, उनमें से मिनरल्स अगर पास आउट हो रहे हैं, इरप्ट आउट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो लावा इरप्शन हो रही है. और अगर मिनरल्स वोल्केनो के अंदर हैं, इनर लेयर ऑफ अर्थ में है, सो दैट्स कॉल्ड एज मैग्मा. सो वोल्केनोज ब्लोइंग देयर टॉप्स, वोल्केनोज स्प्रेइंग igneous rock, also called as igneous rock. ठीक है, अब इससे आपको क्या पता चला, जो वोल्केनो इरप्शन होगी, वोल्केनिक इरप्शन होगी, और जो उसके थ्रू रॉक डेवलप होगी, वो कौन सी होगी, igneous rock. Weathering, you know that the breaking down of sediment called as weathering. Weathering पता है ना सब बच्चों को कि रॉक्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, उसे हम weathering कहते हैं. वेदरिंग किस वजह से होती है, फ्रॉम विंड, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम रेन. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग, विंड एंड रेन. वेदरिंग मेकिंग रॉक्स नॉट द सेम. वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो रॉक्स को सेम रहने ही नहीं देता, और उसकी वजह से फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स डेवलप्ड होते हैं. ओशंस, वेयर द रॉक्स गो, ओशंस द बॉटम फ्लोर. वी नो दैट द ओशनिक क्रस्ट, कितना भी पानी, हमारे ओशंस कितने भी वाटरी है, लेकिन उनकी जो लोअर लेयर है, जो सबसे नीचे उनका बेड, ओशन बेड है, वो किसका है, वो भी हार्ड सरफेस है, वो भी रॉक्स हैं. सेडिमेंट्री आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट रॉक्स. अच्छा, जब वेदरिंग का प्रोसेस होगा पूरा, और वेदरिंग से रॉक्स डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में टूटेंगे, तो वो डिपॉजिट भी तो होंगे कहीं पे. सो द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट रॉक्स. Sedimentary, fossils near and far. Sedimentary rocks contain fossils. Now what are fossils? Fossils बेटा बेसिकली कोई प्लांट है, कोई एक एरिया है जहाँ पे जो फॉरेस्ट था, ठीक है, अब वो फॉरेस्ट, उसकी कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट हुई, डिफॉरेस्टेशन हो गई, वो फॉरेस्ट जो है मिट्टी में उसको डंप किया गया, और फिर वो जब, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है, जब वो ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वो डिकम्पोज होता रहेगा, उसके डिकम्पोजिशन से उसके जो बकायाजात होंगे वो रॉक्स पार्टिकल में मिल जाएंगे. दैट्स वाई इन सेडिमेंट्री रॉक्स वी फाउंड द फॉसिल्स. फॉसिल्स मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में. नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रेशर, दिस एंड हीट. जब प्रेशर मिलेगा इस सेडिमेंट्री रॉक को और हीट मिलेगी, हीट कहाँ से मिलेगी, द इनर लेयर ऑफ अर्थ विच इज कोर. प्रेशर अबव, ऊपर की तरफ से आएगा, द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ की तरफ से, एंड टेम्परेचर जो है, हीट जो कहाँ से मिल रही है, इनर लेयर ऑफ अर्थ विच इज फ्रॉम कोर. प्रेशर हार्ड टू बीट. नाउ metamorphic, like the butterfly, metamorphic, change and transformed. After the heat and pressure on sedimentary rocks or igneous rock, it built the metamorphic rock. जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्निशियस रॉक पे प्रेशर पड़ेगा और हीट की वजह से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, सो इट विल क्रिएट द मेटामॉर्फिक रॉक, और फिर बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फ मीन change or transform. The rock cycle goes on and on. The rock cycle never stopping beyond. और ये रॉक साइकिल चलती रहेगी, ये पूरी एक साइकिल है, ये चलती रहेगी, जो कभी भी नहीं रुकेगी. नाउ यू नो दैट टाइप्स ऑफ रॉक, अभी हमने सारा डिस्कस किया है, तो अब आप लोग इजीली जल्दी जल्दी इसको रिकॉल करेंगे कि कौन कौन से रॉक्स हैं. नाउ देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रॉक विच इज इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक. सो इग्निशियस रॉक, इग्निशियस वर्ड कम्स फ्रॉम फायर. कहाँ से बना ये वर्ड, फायर. फायर मतलब आग. अब वो आग क्या अर्थ के ऊपर लगेगी,
नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो फायर है, फायर आग लग रही है, वो बात हो रही है इनर लेयर ऑफ अर्थ, मोल्टेन इनर लेयर ऑफ अर्थ, विच इज फाउंड इन सेकेंड लेयर मेंटल, जहाँ पे मैग्मा बिल्ड हो रहा है। फिर वो वोल्केनिक इरप्शन होगी। अच्छा, जो मैग्मा इनसाइड द लेयर ऑफ अर्थ ड्राई हो जाए, ठीक है, ड्राइज आउट, इट ड्राइज आउट, तो फिर वो कहलाएंगी हमारी जो इग्निशियस रॉक है, दे आर कॉल्ड एज इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक क्या है? जो लेयर ऑफ अर्थ के अंदर ही मैग्मा इरप्ट हो रहा हो। मैग्मा अगर बाहर आएगा तो हम उसे लावा कहेंगे। मैग्मा अगर लेयर ऑफ अर्थ के अंदर ही ड्राई हो रहा है, वहीं पे वो डिफरेंट रॉक फॉर्म कर रहा है, तो वो कहलाएंगी इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। एंड व्हाट आर एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक? दे आर फॉर्म्ड व्हेन मोल्टेन रॉक रीचेस द अर्थ सरफेस एंड कूल। अच्छा, एक्सट्रूसिव से आपको समझ में आ रहा है कि बाहर की तरह, जब वो इरप्शन होगी, लावा बाहर आएगा और लावा बाहर आके ड्राई आउट होगा। जब वो सूखेगा तो उससे जो रॉक फॉर्म होगी वो कहलाएगी इग्निशियस एक्सट्रूसिव रॉक। अच्छा, अब मुझे आप ये सोच के आंसर करें अपने आप को, क्या हमें इग्निशियस रॉक में फॉसिल्स मिलेंगे? फॉसिल्स मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि फॉसिल्स होते क्या हैं। इग्निशियस रॉक में फॉसिल्स होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दे दीजिएगा। Now you can see the different example of igneous rock. They are serpentinite, granite, gabbro, basalt, pumice. These are the types of igneous rock. These are the examples of igneous rock. Now let's move further. The second rock is metamorphic rock. The word metamorphic shows that means transformation or change in rocks. Metamorphic rock formed when other rocks are changed by heat, pressure and chemical action. केमिकल एक्शन या फिर हीट और प्रेशर की वजह से जो रॉक्स बनेंगी उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा, you can see the picture of the minerals as well, like calcite, quartz, biotite. These are the example of minerals. ये सब minerals, जब ये सारे minerals जो आपस में मिलते हैं तो इनसे different rocks build up होती हैं. You can see the examples of metamorphic rock in this picture, like marble, slate, gneiss, schist. These are the examples of metamorphic rock. Metamorphic rock कैसे बन रही हैं? They are formed by the heat and pressure on sedimentary rocks or igneous rock. अच्छा, क्या आपके ख्याल से metamorphic rocks में layers होंगी? Think about it. बिल्कुल, इसमें लेयर्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर की वजह से बन रही है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, ऑल्सो द इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी अर्थ पे मौजूद हैं। जब उन पे प्रेशर बनेगा तो एक के ऊपर एक जो प्रेशर पड़ता जाएगा उससे लेयर्स ऑफ रॉक्स जो बिल्ड होंगी। द मेटामॉर्फिक रॉक कंटेन्स द लेयर्स इन द रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक में आप हमेशा देखोगे कि लेयर्स, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द फ्लोर ऑफ योर हाउस, टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको मार्बल नज़र आ रहा है, तो उसमें लेयरिंग नज़र आएगी। ठीक है, कहीं पे आपको वाइट कलर नज़र आएगा, कहीं पे ब्राउन कलर नज़र आएगा। तो ये क्या है? ये कलर किसी ने खुद नहीं किया, दे आर फॉर्म्ड नेचुरली बाय द हीट एंड प्रेशर। Now the third is sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed when combinations of rock fragments, seashells and chemicals are compressed in layers and the hardened. Sedimentary rock किस तरीके से बनती है? सबसे पहले igneous rock हो जाएगी, ठीक है, होगी। igneous rock उसमें बाय विंड, बाय वाटर, जब इसमें वेदरिंग स्टार्ट होगी और फिर वो वेदरिंग की वजह से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहेंगे, सो उसकी वजह से न्यू रॉक बिल्डअप होगी। दिस इज कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स में लाइक कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये सारे जो रॉक्स हैं, ये सारे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स।
Now give me 1 second. The atmosphere is constantly at work on land on account of which the rocks break up and wear out. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरीके से बन रही हैं कि जो लेयर ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ है या तो उसमें ब्रेकिंग हो रही है, मतलब कि वो टूट रही है। ये तो हमें पता है ना, बस वेदरिंग का प्रोसेस क्या होता है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक। उसके सेडिमेंट्स दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, फिर वो किसी और मिनरल के साथ मिल रहे हैं, तो उस वजह से क्या बन रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स। Now this is the rock cycle, also classifying the types of rocks, how rocks form. Geologists classify rocks into three major groups. We know that these are igneous rock, sedimentary rock, and metamorphic rock. So the first picture is showing the igneous rock forms when magma or lava cools and hardens. अच्छा, ये जो आप नीचे वाली तरफ देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो इरप्शन दिखा रहे हैं और ऑरेंज और येलो कलर है, दीज आर द मैग्मा। क्यों? क्योंकि ये इनर लेयर ऑफ अर्थ में है। व्हेन इट इरप्ट आउट, जब ये इसकी इरप्शन हो जाएगी और जब ये बाहर आएगा फ्रॉम द वोल्केनो से जब ये बाहर आएगा, सो इट इज़ कॉल्ड एज लावा। ठीक है, इसको फिर हम क्या बोलेंगे, लावा। अच्छा, इग्निशियस रॉक मैग्मा से भी बनेगी, लावा से भी बनेगी। when magma cools down in the layer of earth, जब मैग्मा लेयर ऑफ अर्थ के अंदर कूल हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उससे जो रॉक फॉर्म होगी, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। और जो लावा बाहर आ रहा है, लेयर ऑफ अर्थ के बाहर आ रहा है, क्रस्ट पे आ रहा है, तो जब वो ड्राई होगा, जब वो कूल होगा, उसकी वजह से जो रॉक बनेगी उसे हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। नाउ द सेडिमेंट्री रॉक, the second picture is showing the sedimentary rock forms when pieces of rock are pressed and cemented together. अच्छा, फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ पे लाइम स्टोन जो है ये मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, जब डिफरेंट सेडिमेंट्स आपस में आकर जो है क्या नाम है, डिपॉजिट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के जो सेडिमेंट्स हैं वो आके जब डिपॉजिट होंगे, तो बाय रेन, जब अगर बारिश होती है या फिर इनका आपस में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है, उस वजह से ये बिल्कुल सीमेंट की फॉर्म में, इसको सीमेंट कैसे सीमेंटेड हो जाएंगे ये, कि अलग अलग अगर रॉक्स ग्रेन पड़े हुए होंगे तो वो आपस में रॉक थोड़ी कहलाएंगे, वो तो ये कहलाएगा कि डस्ट पार्टिकल है या फिर ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स ऑफ रॉक्स हैं। लेकिन ये फिर टाइमली, इनको टाइम के साथ साथ ये आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कि ये टूट नहीं सकते। सो दिस इज़ कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड इन हार्ड फॉर्म और ऑल्सो द सॉफ्ट फॉर्म। मैं लिक्विड फॉर्म नहीं बोलूँगी, मैं सॉफ्ट फॉर्म बोलूँगी। यू कैन, देयर इज़ एग्जाम्पल ऑफ चॉक। चॉक जो है इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ रॉक, बट इट्स अ सॉफ्ट रॉक, ये जब हम उसको ईजिली क्रश कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड पिक्चर शोइंग द मेटामॉर्फिक रॉक एंड देयर इज ऑल्सो अ लेयर्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्स फ्रॉम द अदर रॉक्स दैट आर चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर। यू कैन सी द लेयरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा, सेडिमेंट्री में भी आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं और मेटामॉर्फिक में भी, लेकिन सेडिमेंट्री में प्रेशर नहीं है। ठीक है, प्रेशर की वजह से उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, उसमें डिज़ाइनिंग नहीं हो रही। लेयर्स उसमें भी हैं, लेकिन मेटामॉर्फिक में कैसे डिज़ाइनिंग होगी, क्योंकि उस पर हीट, इनर कोर की तरफ से हीट आ रही है और अपर क्रस्ट की तरफ से प्रेशर आ रहा है, जिस वजह से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ देयर इज़ अ रॉक साइकिल। वैसे तो अभी तक इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन इसकी एक साइकिल को भी हम दोबारा से देख लेते हैं कि इग्निशियस रॉक जो है वो कन्वर्ट हो रही है डिफरेंट सेडिमेंट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का जो प्रोसेस हो रहा है उस वजह से इग्निशियस रॉक कन्वर्ट हो रही है सेडिमेंट्स में, और सेडिमेंट्स जब आपस में सारे मिल रहे हैं, दे आर कॉम्पैक्ट एंड सीमेंटेटेड। जब वो सीमेंटेटेड हो रहे हैं और कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, उस वजह से बन रही हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। Sedimentary rocks, when goes under the heat and pressure, it converted into metamorphic rock. So this is the rock cycle. और फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो मिनरल्स, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स आर डिफरेंट फॉर्म्स विद डिफरेंट मिनरल्स। जब वो डिफरेंट मिनरल्स हीट की वजह से मेल्ट होंगे तो मैग्मा बिल्ट होगा। मैग्मा बिल्ट होगा तो
इनर लेयर के अंदर जब मैग्मा ड्राई आउट हो रहा है तो बन रही है हमारी एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, और जब वो मैग्मा इरप्ट आउट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लावा, और जब वो रॉक्स जो हैं कूल हो रही हैं और ड्राई हो रही हैं तो उससे बन रही है हमारी इन एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक. नाउ जज़ाकल्लाह फ्रॉम माई साइड. आई एम होपिंग दैट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है इसके, तो आप इसको और ज़्यादा रिव्यू करिएगा, और अगर कोई क्यूरियस सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. जज़ाकल्लाह.